के राजकुमार आज हमारे मन में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान तेरा हो अभिषेक। अमेन के राजकुमार आज हमारे मन में जन्म ले। हे प्रभु यीशु महान हे प्रभु यीशु महान। संभाल के लैके आंदा खुदा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। और जिन्हें परिवार प्रभु यीशु मसीह पीछे सारे ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ खुदा। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ खुदा। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨ खुदावंद खुदा। ਤੁਸੀਂ पाक खुदावंद प्रभु यीशु मसीह। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ खुदा। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ खुदावंद ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ खुदा। और साडा विश्वास है खुदावंद सानू सब कुछ मिल गया ਤੁਹਾਡੇ बेटे प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। आमीन। कलाम पढ़ने या सुनने उदों सानू अपनी पहचान का पता चलता कि असी है की हाँ, साड़ी आइडेंटिटी साड़ी पहचान की है। सो खुदावंद दा कलाम साड़ी जिंदगी दे विच बहुत जरूरी है। असी खुदावंद दे खादम कोलों
खुदावंद दा कलाम सुनांगे ते ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ तो ਆਣਗੇ खुदावंद दा कलाम ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਅਜੀ ਜੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਦਿਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਲਈ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਰੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਪੈਮ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸਭ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਸਟਰ ਐਂਜਲੋ ਜੀ, ਬ੍ਰਦਰ ਸੋਲ ਜੀ, ਜੌਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਇਹ ਪੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੀਜੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਖਰਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਕਲਾਮ, ਖਰਾ ਕਲਾਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਇਟਰਨਲ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨ ਲਈ ਆਵੇ। ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੇ ਆਉਣੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ, ਪਰ ਅਜੀਜੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
लेकिन अज दुनियावी आशिश ते बरकत दा कलाम सुना सुना के इस स्वर्गी धन तो लोगों को महरूम किया जा रहा है। दुनियावी आशिश बरकत दा कलाम सुना सुना, चमत्कारां दा कलाम सुना सुना के चमत्कारां दे पिछे लोगों को दौड़ाया जा रहा है। वो परमेश्वर की योजना को भुलाई बैठे हैं, वो भुलाई बैठे हैं कि इन्हां चमत्कारां तो अगे कुछ होर भी है। जीजो दुनियावी आशिश ते बरकत इहदे बारे दसण की जरूरत नहीं है, इहदे बारे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वचन दे विच लिखिया होया है, जदों असीं परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन जावांगे वो अपने आप मिल जाएगी। दुनियावी आशिश आशिश की बरकत पिछे रह के जदों हमेशा की आशिष अटर्नल आशिष का मन बना लवांगे तो मौज ते अपने आप सारी जिंदगी में होंगे। इसलिए अपने मनां नूं अपने दिलां नूं खरे उपदेश उत्ते लाओ, सच्चे सुच्चे कलाम दे उत्ते लाओ मेरे जी। वचन विच लिखिया होया है, ऐसे समय आ जाएंगे कि लोग खरा उपदेश सुनना पसंद नहीं करेंगे। वो अपने कन्ना की जलून की खातर मिठिया मिठिया गल्लां किस्से कहानियां उत्ते मन लाउणगे, दिल लाउणगे। वो अज असीं देख रहे हैं। जो की तुसीं उन्हां विचों एक होना पसंद करोगे? नहीं ना। जे नहीं तो हमेशा खरे कलाम दे उत्ते अपना मन ला के खरा कलाम सुनाउण वाला बुरे जरूर लगते हैं, लेकिन खरा कलाम तुहाडे लई फायदेमंद है। खरा कलाम ही तुहाडे लई फायदेमंद ते सुनाउण वाला तुहाडा सच्चा खिदमतगार वही है। मिठिया मिठिया गल्लां उत्ते लाउण वाला तुहाडा नंबर 1 दुश्मन है। मेरी खरे कलाम सुनाउण दी आदत दा करके ही बहुत लोग मैनूं नफरत करते हैं, समझ नहीं गल। लेकिन मैं खरा कलाम सुनाउण तो कदे नहीं हटदा, अज तक नहीं हटिया, ताकि तुसीं सब दे सब हमेशा की जिंदगी दे वारस हो जाओ। तुहाडे विचों एक भी ऐसा ना रहे जिहड़ा हमेशा की जिंदगी तो महरूम रह जाए, वांझा रह जाए। सो जीजो तुसीं खरा उपदेश सुनने के लिए तैयार हो? बोलो जी, उच्ची जरा बोलो हाँ जी, हालेलुया। ते फिर आओ असीं परमेश्वर के कलाम दे वल चलदे आ। जीजो असीं अफसियां दा खत 4 बाब, इसे दा 4 बाब 11 तो 16 पढ़ांगे। 11 तो कितनी? 16 पे 11 तो 16। जी। और उसी ने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए, जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं और कामिल इंसान ना बने, यानी मसीह के पूरे कद के अंदाजा तक ना पहुँचें, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहें और आदमियों की बाजीगिरी और मक्कारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते बहते ना फिरें, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद से पैवस्ता होकर और गठ कर उस तासीर के मुआफिक जो बाकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। देखो अजीजो 16 आयत गौर करो, इस ये समझनी है पूरी तरह, बचन के इस हिस्से में समझना है। 16 आयत की कह रही है, जिस तो सारी देही एक जोड़ की मदद दे नाल ठीक ठीक जुड़ के ते एक एक अंग मिल के एक एक अंग दे बल काम सही सही काम करन दे अनुसार अपने आप को ਵਧਾਈ जावे भी असी प्रेम दे विच अपनी उसारी करिए। देख सही सही जुड़ के
ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜ ਕੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਾਂ ਮੈਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ। ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜੋੜ ਫਿੱਟ, ਇੱਥੋਂ ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ ਫਿੱਟ ਆ, ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜਿਆ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਹੈ ਠੀਕ ਜੁੜਿਆ, ਹਰ ਜੋੜ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਹਰ ਜੋੜ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜ ਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਤੇ ਅੰਗ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਬਣਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਬੈਠੇ, ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ, ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਤੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਹੀ ਸਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ? ਇਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ? ਇਹਦੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ। ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਟਿੰਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਟਿੰਗ, ਸੇਮ ਕਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ये जो है मिसाल, ये जो है ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਟੁਕੜਾ ਛੋਟਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਰਗੜਾਈ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਤੇ ਰਗੜਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੜ ਘੜ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰ ਜੋੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜੋੜ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੇ ਪੜਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ
खुद अपने आप ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖੁਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੁਦੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਖੁਦੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੀਜੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖੁਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੁਦੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਖੁਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀਜੋ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਖੂਨ ਬਹੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਅੰਗ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੇਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਹ ਦਾ ਖੂਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇਹ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਜੂ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 12 ਬਾਬੂ ਦੀ 12-13 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖੱਤ 12 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 12 ਤੇ 13 ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਜਨਾਨੀ ਕੀ ਗੁਲਾਮ ਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ।
क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ा गो बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, उसी तरह मसीह में भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वाह यहूदी हों ख्वाह यूनानी, ख्वाह गुलाम ख्वाह आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। होने के जोड़ दे नाल जोड़ सही तरह फिट होएगा ਤੇ ਤਦ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਦਈਏ ਉਦਾਂ ਹੀ ਘਾੜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਖਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਕਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸੀਹ ਕਿੱਲਾਂ ਮੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਏ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਦੇ ਲੱਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਗੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਐਨ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਖੜਨਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਖੜਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਉਹ ਐਨ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ परमेश्वर का फजल चलाऊंगा जब तक असी अंग नहीं बनते जब तक असी अंग नहीं बनते पवित्र आत्मा सानू चलाऊंगा परमेश्वर का फजल सानू चलाऊंगा है तो जदों अंग बन के जुड़ गए तो फिर देह का लहू साडे अंदर बहना शुरू हो जाता है मेरे जी देह का खून साडे अंदर बहना शुरू अंग बन के जो जुड़ जूगे परमेश्वर का लहू बहना शुरू साडा कनेक्शन देह दे नाल जुड़ जाता है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇਪਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇਪਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਕਦੇ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਖੁਦੀ ਤੇ ਵੱਡਾਪਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। बहुत बार सोचते हैं ਅਸੀਂ प्रभु यीशु ਨੂੰ कबूल कर लिया बपतिस्मा ले लिया पवित्र आत्मा पा लिया ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਤੀ 7 ਬਾਬ 13-14 ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तंग दरवाजा से दाखिल हो क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है। कौन सी जिंदगी जिहड़ी मैं पहला दसी हमेशा दी और उसके पाने वाले थोड़े हैं। थोड़े बहुत लोग सोचते हैं बपतिस्मा ले लिया पा लिया पवित्र आत्मा पा लिया थोड़ा कष्ट झल लिया थोड़ी मुसीबत झल ली असी तंग मार्ग में असी तंग दरवाजे में चल रहे हैं नहीं है जी। प्रभु यीशु ने असी कबूल किया तंग दरवाजे दे विच प्रवेश करन दे लई बपतिस्मा लिया तंग दरवाजे दे विच प्रवेश करन दे लई पवित्र आत्मा पाया तंग दरवाजे दे विच प्रवेश करन दे लई ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਕੱਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। जो खुदी दे नाल तंग दरवाजे में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है किया ही नहीं जा सकता। वो खुदी अड़दी है वो तंग है दरवाजे ना तो खुदी के खूंगे बहुत लंबे है किदा प्रवेश करोगे ला के सुटते होंगे तो फिर तंग दरवाजे में प्रवेश कर सकते। कभी तो प्रभु यीशु ने कहा बथेरे वड़न की कोशिश करनगे इस तंग दरवाजे में वड़ नहीं सकणगे क्यों नहीं बढ़ सकते प्रभु यीशु ने कहा क्योंकि उन्होंने खुद ही नहीं त्यागी अपनी मैं नहीं त्यागी
ਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਾਓ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੰਗ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਆਨੰਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੈਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ। ਦੇਖ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਹ ਦਾ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਨੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ ਹੈ, ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਨ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਬਣਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਗ ਬਣੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹਨ ਦੇਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਮੀਆਂ 8 ਬਾਬ ਕੱਢਾਂਗੇ। 8 ਬਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 39 ਤੱਕ 3-4 ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ? ਹਾਂ। ਕੀ ਵਿਪਤਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਅਨੇਰ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਨੰਗ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿਨ ਪਰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਬਈ ਨਾ ਮੌਤ
ਨਾ ਜੀਵਨ, ਨਾ ਦੂਤ, ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਾ ਉਚਾਈਆਂ, ਨਾ ਡੂੰਘਾਈਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕੌਣ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਚਰਚ ਕਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਝਟਕੇ ਵੱਜਣ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਹ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਦੇਹ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੁੰਬਕ, ਖੁਦੀ ਦਾ ਚੁੰਬਕ, ਮੈਂ ਦਾ ਚੁੰਬਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣਾ, ਪਰਖਣਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ। ਕਿਸ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜਨ ਲਈ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਜੁੜਨ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਖੁਦੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਗੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਸਹੀ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਰਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਗੈਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਪੈਮ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਪੈਮ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਰ ਪੈਮ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ।
खुदावन यीशु मसीह की जय। खुदावन यीशु मसीह की जय। बाप बेटा रूह कुद्दुस की जय। आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुशी हो रही है और बहुत अच्छा मौका है। क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, डेकोरेशंस हो गई, लाइट्स लगी हुई हैं, हमारे दिलों के अंदर भी लाइट्स लग गई है। हालेलुया। खुदा के कलाम से रोशनी होती है हमें भी, और बड़ी खुशी हो रही है कि सारे मिलके आप क्रिसमस अपन मना रहे हैं। और खुदा का कलाम बहुत अच्छा सुनाया गया, पास्टर टीम ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुनाया। और मेरी भी कोशिश है कि मैं थोड़ी सी गलबात करा, खास तौर पे खुदा यीशु मसीह के बर्थ के हवाले से। और मैं सब आप सबको शलोम तुहानू कहनी है, क्योंकि असीं 2 दिन पहलों उस जेरूशलम तो उस जगह नू मत्था टेकिया जिसे प्रभु जी पैदा हुए। बिल्कुल 2 दिन पहले ही इजराइल तो होके आए हैं, और खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावन का अमन है, पीस है, तसल्ली है, इत्मीनान है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आए हम दुआ करें और अपने आप को प्रिपेयर करें, क्योंकि प्रभु जी आज मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बेशक वो 2000 साल से पहले वो पैदा हुए, लेकिन जो उनके बारे में कहा गया था, जो प्रोफेसीज हुई थी, जो नबूवत हुई थी, वो पूरी हुई। आमीन। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते, तेरे प्यारी बेटी यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। और खुदावन हम अपने आप को खाली करते हैं। खुदावन तू हमारे अंदर काम कर। खुदावन जो वचन सुनाया गया है, खुदावन तेरे खादिम ने सुनाया है, सचमुच खुदावन वो हमें तैयार करता है। खुदावन सचमुच तेरा जोर हमारे अंदर काम करे। खुदावन तू जो भी खुदावन हमारे अंदर कमी घटी है, तो अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम से, बल्कि उस कलमा से, खुदावन उस कलाम से तुम्हारे अंदर काम कर। खुदावन हम तुझे फुल खुदावन इजाजत देते हैं और सरेंडर करते हैं कि तेरी ही पाक और पवित्र मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया। खुदावन जो तूने अथॉरिटी एक खुदावन बिलीवर को दी है, जो खुदावन तूने वो कुंजी दी है, जो पतरस को तूने चाबियां दी थी, खुदावन आज हमें भी वो कुंजी दे, ताकि आसमान के उस भेद को तू हमारे ऊपर खोले, ताकि हम जाने कि यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ। हर कोई कहे जीसस मेरे लिए इस दुनिया में आया, जीसस मेरे लिए इस दुनिया में आया, यीशु तो मेरी खातिर इस दुनिया में आया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक की तरह शुक्र करते हैं कि तूने इस दुआ पे कान लगाया है और हमारे दिल की बात को जाना है, और इसी पे हम करते हैं यीशु के नाम में आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड। मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी सी बातचीत करें। इज इट ओके फॉर स्पीकिंग उर्दू? इज ऑलराइट? या, थैंक यू। आई फील वेरी कंफर्टेबल, इट्स ओके, क्योंकि ब्रदर ने जस्टिस की तरह पंजाबी सुना के, सो जो बाकी समझना चाहते हैं उनके लिए। खुदा यीशु मसीह खास तौर पे बाप, बेटा, रूह कुद्दुस, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ट्रिनिटी को समझने के लिए हमें वाकई ही बाइबल स्टूडेंट बनना पड़ता है, बल्कि बनना चाहिए खुशी से। हमें खुदा यीशु मसीह के शागिर्द बनना है, चेले बनना है, ताकि जैसे चेलों ने काम किया हम भी उसी तरह से काम कर सकें। आमीन। हालेलुया। बहुत सारी नबूवतें खुदा यीशु मसीह में पूरी हुई हैं, और खुदा खास तौर पे खूबसूरत बात जो यशायाह नबी ने फरमाई, मैं उस पर चाहूंगी कि आज हम गौर करें। हर जगह पे इजराइल जाएं, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, किसी गांव में जाएं, शहर में चले जाएं, जब क्रिसमस होता है तो हर एक इंसान को पता होता है कि खुदा का बेटा, बेशक उसे कबूल करें या ना करें, पसंद करें या ना करें, लेकिन पता होता है कि ये मसीहों का दिन है, ये उस मसाया का दिन है जो कुल जहां का कुफारा देने के लिए आया। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये सच है, बहुत सारी तब्दीली दुनिया में आ रही है। ये सच है कि मासूम लोग मारे जा रहे हैं। ये सच है कि कैलिफोर्निया में किसी को नहीं पसंद आया मसीह पैगाम जो दिया जा रहा था, क्रिसमस पार्टी हो रही थी, उसमें नहीं पसंद किया गया। तो आपको पता है कि कितने अफसोस की बात है, वो जोड़ा जिनकी छोटी सी बच्ची थी, कितनी उसके अंदर इब्लीस ने नफरत भर दी कि जाके उन्होंने उस क्रिसमस पार्टी पे 14 जनों को हलाक कर दिया। दैट इज सो सैड। और मुझे दुख होता है जब स्कूल्स में कई लोग एतराज करते हैं कि बाकी सब कुछ करो लेकिन मसीह का नाम नहीं आना चाहिए। जिससे इब्तिदा हुई, जिससे शुरुआत हुई, जिससे क्रिएशन हुई, जिससे मखलूक, मतलब यानी कि एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हिम, उसी का ही नाम लेना पसंद नहीं करते। कैरल्स नहीं गानी चाहिए, जीसस का नाम नहीं लेना चाहिए। जी हमें हमारी तौहीन होती है, हमारे ईमान को ठोस मतलब लगती है। कौन सा ईमान, कैसा ईमान। लेकिन आज मैं और आप जो बिलीवर हैं ये जानते हैं कि यीशु मेरी और आपकी खातिर आया। हालेलुया। उस जर्नी में वो रखा गया, उस जगह पे ग्रोटो जो है बैतलहम में, हम वहां जाते हैं
सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता है, जो आप गए हैं आपको तो पता है, तो जाना पड़ता है, यानी कि हम सिजदे की हालत में ही वहाँ जाते हैं जहाँ खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, माँ मरियम, यूसुफ, और जहाँ वो इतनी अच्छी क्लीन जगह नहीं थी जहाँ वो पैदा हुए, लेकिन जब हम जाते हैं बड़ी हलीमी के साथ जाते हैं। इस बार जब हम गए तो मैं सोच रही थी इस बात के लिए कि ऐसा हो सकता है शायद यहाँ कोई हो जिसको ये जगह या यीशु की तालीम ना पसंद हो, खुदा ना खास्ता यहाँ कोई बम फट जाए तो हमारा उस केव से, उस गुफा से निकलने का कोई कहते हैं रास्ता नहीं होगा, बिकॉज वो बड़ी छोटी सी जगह है जहाँ वो गुफा के अंदर यहाँ यीशु मसीह पैदा हुए। लेकिन मैं उस वक्त सोचने लगी ये तो बहुत ही अच्छा होगा, यहीं से मैं सीधे खुदा के पास चली जाऊंगी। आमीन। जो बिलीवर हैं, जो ईमानदार हैं, वो इन पटाखों से और इन बम से और टेररिज्म से नहीं डरते, बल्कि मैं समझती हूँ मैं और आपको टेररिज्म करना है खुदा उनके कलाम का। हालेलुया। बल्कि हमारा ईमान इतना होना चाहिए कि हमें इन चीजों से डरना नहीं। लेकिन मैं अफसोस करती हूँ कैलिफोर्निया में जो हादसा हुआ है उसके लिए मुझे बहुत दुख है कि बेशक वो मुस्लिम थे लेकिन वो भी अहले किताब का एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए, और अगर यीशु पे ईमान नहीं रखते या जीसस को नहीं मानते तो फिर उनका ईमान भी मुकम्मल नहीं है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं बड़े अफसोस के साथ इस बात को भी इस मौके पे कहना चाहूँगी कि पेरिस में जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं उसके लिए हमारा दिल बहुत मतलब अफकोर्स सोचते हैं कि आपके बारे में सोचते हैं, हमारी कम्युनिटी यहाँ है और हमारे अजीज़ यहाँ है तो ज़रूर सोचते हैं। तो जब से ये पता चला है हम लोग आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी क्या कहते हैं कि खुदा का हाथ आपकी ज़िंदगी पे हो, आपके बच्चे जा रहे हैं ट्रैवल करें, क्योंकि आजकल कोई पता नहीं आपके बीच में कौन खड़ा है और क्या किसी वक्त हो सकता है। जैसे एक शख्स रॉबर्ट नाम का था कैलिफोर्निया में, दिस इज बात 2012 में हुआ था। एक सुबह वो उठा और उसने एक नोट लिख दिया, उसने कहा टुडे आई एम गोइंग टू बी फेमस, आज मैंने बहुत मशहूर हो जाना है। और जब उसने ये बात कही और उसने अपना जो उसका मकसद था उसको पूरा करने के लिए शॉपिंग सेंटर में चला गया, वहाँ जाके वो वहाँ लोग आए हुए थे फैमिलीज के साथ थे, कोई अपने बच्चों को खाने के लिए लेके आया था, कोई शॉपिंग में था, मतलब बिजी था, कोई कुछ कर रहा था। लेकिन इस शख्स ने मशहूर होना था, हर टीवी चैनल पे होना था, हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे होना था। तो उस वक्त उसने अपनी जेब से बंदूक निकाली और उसी वक्त 8 लोगों को मार डाला। क्या ऐसे लोगों को दुनिया याद रखेगी? ऐसे लोगों पे अफसोस किया जाता है। लेकिन यीशु मसीह का जब हम जिक्र करते हैं, जब जीसस की पैदाइश की बात करते हैं तो हमारे दिलों में कितनी खुशी होती है, हमें कितनी तसल्ली, सुकून, मोहब्बत, प्यार, हर चीज मिलती है। ये सच है। बेशक माहौल हमारे आसपास बदलता जा रहा है। बेशक खुदावंद यीशु मसीह को बहुत सारे लोग कहते हैं वो एक बहुत अच्छा नबी था, वो एक बहुत अच्छा हकीम था, वो एक बहुत अच्छा ज्ञानी था, वो एक बहुत ही अच्छा उस्ताद था, वो बहुत ही अच्छा शख्स था। लेकिन मैं और आप जानते हैं वो एक बहुत ही अच्छा, मुकम्मल, परफेक्ट, कामिल निजात दहिंदा है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए वो सेवियर है, मुझे और आपको वो बचाता है और हमेशा की जिंदगी वो देता है। आए हम अपने दिलों को उस चरनी की तरफ लगाएं जहां यसाया नबी ने एक इतनी खूबसूरत बात कह दी। मैं भाई से गुजारिश करूंगी, भाई एंजलो से, कि वो पढ़ दें। वी कैन रीड यसाया 7:14। यसाया नबी का सहीफा चैप्टर 7 और उसकी 14 आयत में लिखा है। ये कितनी खूबसूरत बात उसने कह दी। हाँ जी। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेंगे। इसी को ही मत्ती रसूल की इंजील और उसका 1 चैप्टर 23 आयत में भी देखें। बहुत ही मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है ये बात सुनना कि देखो खुदा ही खुद हमें निशान देगा। कोई नबी या कोई इंसान या कोई बहन या कोई बेटी नहीं, बल्कि खुदा खुद, जो वाहिद खुदा, जो शालोम है, जो इत्मीनान का चश्मा है, जो अव्वल और आखिर है, जो पहले से अंत तक है और जिसने न्याय करना है, फैसला करना है, वही हमें एक चिन्ह देता है, हमें एक निशान देता है। क्या कुंवारी हामला होगी, बच्चा जनेगी,
और उसका नाम क्या होगा? इमैनुअल, यानी कि खुदा हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए खुदावन ने बिल्कुल ये सारी बातें जो कही, जैसे मत्ती रसूल की इंजील पहला अध्याय उसकी 23 आप पढ़ सकते हैं कि खुदा हमारे साथ, Behold the virgin shall be with child and bear a son and they shall call his name Emmanuel। बार बार अब जो है मत्ती रसूल जो है वो बताता है और याद कराता है कि मत भूलो कि खुदावन के बारे में पहले से ही खुदा ने निशान दे दिया है। क्योंकि जब खुदावन की पैदाइश हो गई, खुदावन क्रॉस पे चले गए, मुर्दों में से जी उठे, तो बहुत सारे यहूदी लोग थे, उनके लिए मुश्किल था इस चीज पे मतलब ईमान लाना कि ये सचमुच ये नबूवत पूरी हो चुकी है। आपको पता है कि यहूदी लोग अभी तक भी इंतजार करते हैं कि मसाया आएगा और वो उनको दुश्मनों से छुड़ाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ये जो प्रोफेसी थी जो यसाया नबी के वसीला से हुई थी वो पूरी हो चुकी है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोफेसी fulfilled in Jesus Christ only। और इससे हमें पता चलता है कि खुदा की जो प्लान है उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। जब जिस वक्त कहा गया था उसी वक्त ही प्रोफेट इज़ाया ने इसकी नबूवत की और ये जो था पूरा फुलफिल हुआ। और एक खूबसूरत और निशान माइका नबी को जो दिया, मीका नबी को जो दिया, मैं चाहूंगी कि उस पर भी गौर करें। चैप्टर 5 वर्स 2, क्योंकि ये क्रिसमस का वक्त है, क्रिसमस का टाइम है, तो हमें गौर करना चाहिए। अगर हमसे कोई पूछे तो हमें बताना चाहिए कि ये हमने अपनी तरफ से नहीं ये क्रिसमस मनाना शुरू कर दिया, या हमने बाइबल को चेंज नहीं कर दिया, या किसी ने मतलब ये इसको अब हॉलीडे सीजन कहते हैं। लेकिन हमारे लिए तो जो है क्रिस्तुस जो है, जो मसीह है, जो अनॉइंटेड वन है, जिसने फतह पाई है, जो यहूदा का बब्बर शेर है, वो हमारे लिए उसकी जो नबूवत हुई थी वो पूरी हुई। माइका नबी के मतलब बुक में हम देख लेते हैं। But you, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the rulers of Judah, for out of you shall come a ruler who will shepherd my people Israel। Please भाई पढ़ देंगे चैप्टर रेफरेंस कौन? हाँ जी, चैप्टर 5 वर्स 2। लेकिन ऐ बैतलहम अफ्राता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मस्तर ज़मा साबिक हाँ कदीमुल अयाम से है। हालेलुया। माइका नबी जो एक माइनर प्रॉफिट्स में से गिने जाते हैं, यानी कि बहुत अरसा उन्होंने खिदमत नहीं की, इसलिए उन्हें कहते हैं, यानी कि छोटे नबी हैं या उनकी कम खिदमत है, लेकिन माइनर प्रॉफिट्स उन्हें इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कम अरसे के लिए खिदमत की। अब ये जो नबी है इन पे बहुत प्यारा भेद खुदा ने खोला यसाया नबी पे कि कुंवारी हामला होगी और बच्चा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल होगा, यानी कि खुदा हमारे साथ। अब ये भी बता दिया कि उसकी पैदाइश कहाँ होनी है। तो माइका पे जब ये बात रिवील हुई तो वो छोटी सी जगह बेथलेहम एक छोटी सी नगरी है। अब भी जाके देखे पहाड़ों के दरमियान में बसा हुआ है। यहाँ गडलिया अपने जानवरों की रखवाली करते थे, शेपर्ड्स फील्ड है, अभी भी आप देख सकते हो उसी तरह से है। मतलब काफी अब तो जगह पे घर वगैरह बन गए हैं, लेकिन उस माहौल को जब हम देखते हैं तो कोई सोच नहीं सकता कि बेथलेहम जहाँ हैकल के लिए, टेंपल के लिए जिसे कुर्बानियां तैयार की जाती थी, जो हैकल के लिए जो पहुंचाई जाती थी चीजें, वो बेथलेहम में तैयार होती थी। बेथलेहम मींस रोटी का घर। और ये जो रोटी हम रोज खाते हैं, इसके लिए हमें बार बार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वो रोटी, वो जिंदगी की रोटी, वो अब्दी जीवन जल जो था वो बेथलेहम में पैदा होने वाला था। बेथलेहम में ये बरकत मिलने वाली थी। अब जब हम वेडनेसडे के दिन वहां थे तो हम जहाँ गडरिए थे, शेपर्ड्स थे, हम देखते हैं शेपर्ड्स अपने जानवरों की रखवाली कर रहे हैं और कैसे अचानक जो पूरा आसमान फरिश्तों से भर जाता है और खुशी की खबर लेकर आता है, और कितना खूबसूरत लगता है। अब जब वहां जाते हैं, जाके इमेजिन करते हैं कि वो समा कैसा होगा, और थोड़ी सी डिस्टेंस पे वॉक करके जाएं तो जहाँ खुदाम यीशु मसीह पैदा हुए, तो ये सारी बातें रिलेट करती हैं। लेकिन ये दाऊद की नगरी, दाऊद के शहर में जो नबी दाऊद, जब उनके शहर में ये बरकत आई तो माइका नबी ने इसको फरमाया। उन्होंने कहा ये छोटी सी जगह, ये वाकया ही कोई सोच नहीं सकता था इस जगह पे खुदाम यीशु मसीह पैदा होंगे, क्योंकि माँ मरियम और यूसुफ नासरत के रहने वाले थे। वो नासरत से चल कर आए और पहली बार मर्दमशुमारी यानी कि सेंसस हुई थी। देखें, जब दुनिया में चेंजेस आती हैं, जब खुदा कुछ करना चाहता है तो वो परफेक्ट प्लान के मुताबिक चलता है, क्योंकि खुदा पहले से ही बता देता है। बहुत सारे डिक्टेटर आए,
बहुत सारे गए, बहुत सारी हुकूमतें आई, बहुत सारी डिफरेंट सिविलाइजेशन ने कोशिश की दुनिया के रंग और रूप को बदलने के लिए। अब भी वन वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है दुनिया को तब्दील करने के लिए, पोप फ्रांसिस जो है गरीबी पे जो है वो काम करना चाहते हैं, पॉवर्टी को खत्म करना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं। लेकिन ये जो तब्दीली थी, माइका नबी ने कहा बैथलीहम में जो आएगा वो पूरी दुनिया की तब्दीली कर देगा। आमीन। पूरी दुनिया से गंद को मिटा देगा, पूरी दुनिया से गुनाह को हटा देगा, लेकिन उनके लिए जो उसे कबूल करेंगे। तो इसके साथ साथ जो थी कीमत भी चुकानी पड़ी। अब एक और बहुत खूबसूरत हवाला है, उस वक्त क्या हुआ। दुख देखें, जो अब क्रिसमस का महीना है, बहुत सारी फैमिलीज ग्रीव कर रही हैं। पेरिस में बहुत सारे लोग जिनकी जानें चली गई वो ग्रीव कर रहे हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। उनके लिए क्रिसमस नहीं वैसा जैसे पहले था। इसी तरह से कैलिफोर्निया में भी एक माँ रोकर बता रही थी कि उसकी पता नहीं 6 साल की बच्ची है, उसने अपने हस्बैंड के साथ, बल्कि उस बच्ची ने प्लान किया था कि हम डिज्नीलैंड जाएंगे क्रिसमस में, ये मेरी ट्रीट होगी। तब वो माँ रोकर बताती है मैं अपनी बच्ची को कैसे उस डिजायर, उसकी ख्वाहिश को पूरी करूंगी, क्योंकि वो उसके डैड ने उसके लिए पूरी करनी थी। तो अब ये देखिए फैमिली स्कैटर हो चुकी है, रोना है, कहीं मातम है। जब जीसस भी पैदा हुए थे इस तरह से सेलिब्रेशन नहीं थी, लाइट्स नहीं किसी ने भी लगाई थी। यहूदी कौम जिनके पास वो आए वो बेखबर थे। ये तो बाहर से जब वाइज मैन जिसे देखते हैं, जो कैल्डियंस के इलाके से जब वो आए, इराक से चलकर आए, एशिया से चलकर आए, वो खुशखबरी को जानते थे। और जहां सितारा चमक रहा था, जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, वहां उन्होंने आकर उस खुदावंद को, उस निजात दहिंदा को सजदा किया। लेकिन जो वहां के रहने वाले लोग थे वो बेखबर थे। तो इसलिए देखते हैं कि क्या हुआ उस वक्त जब खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए और कैसे उस जगह पे मातम हुआ। मत्ती रसूल के इंजील चैप्टर 2 वर्स 18 में, और जरमिया नबी भी लिखते हैं 31:15, ये नबूवतें हो चुकी थी जो पूरी हुई कि जब जीसस पैदा होंगे तो ऐसा 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 होएगा। तो इसमें लिखा है, वॉइस वाज हर्ड इन रामा, lamentation, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, refusing to be comforted because they are no more। अब क्या है, एक औरत का जिक्र यहाँ है, पढ़िए। रामा में आवाज सुनाई दी, रोना और बड़ा मातम। राखल अपने बच्चों को रो रही है और तसल्ली कबूल नहीं करती, इसलिए कि वो नहीं है। अब उस वक्त भी, क्योंकि ये जो दुनिया का खुदा है, जो शैतान है, वो नहीं चाहता कोई बचे, वो कोई नहीं चाहता कि क्रिसमस सेलिब्रेट करे, वो नहीं चाहता किसी को पता चले कि 25 जो हमने एक अपॉइंट किया हुआ दिन, उस दिन जीसस पैदा हुए थे, वो नहीं चाहता था। उस वक्त भी वो जो खुदा ने जो निशान दिया था, उस निशान को मिटाना चाहता था। आपको पता है कि जहां खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए वहां भी पूरी जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब ममलूक बेबीलोनियन जब आए, इन्होंने सारी उस जगह को तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मसीह की जगह का कोई नाम और निशान रहे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बचे। लेकिन खुदा का प्लान उस प्लान से बहुत बड़ा है। और जहां खुदावंद यीशु मसीह को जब क्रॉस पे जब गए, उतारा गया, और जिस स्लैब पे, जिस पत्थर पे उनको रख कर उनको उनकी बॉडी को जो था मतलब अनॉइंट किया गया, उस जगह को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया कि किसी को ये ना कोई भी निशान मिले कि वाकई ही ये स्लीप पे गया था और मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। लेकिन आज खुदावंद उस कब्र में नहीं है, आज खुदावंद उस चरनी में नहीं है, आज खुदावंद आप में और मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, तारीफ करने के लिए जीसस के। अब राखल जो है वो रोती है, राखल का जिक्र किया गया है। अब जब हम इजराइल से निकलते हैं, यरूशलेम से निकल कर आते हैं, हमारी बस जाती है तो हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता है। बहुत बड़ा गेट है जिसमें से कोच जाती है। इस तरफ यहूदी हैं, चेक पॉइंट है, और दूसरी तरफ पैलेस्टाइन है। अब जो है बेथलीहम वो पैलेस्टाइन के अंदर है। जब हम जाते हैं अंदर तो उसके राइट साइड पे ही राखल की टूम है, अभी भी रेचल की टूम है वहां। और जब हम जाते हैं तो याद करते हैं वाकया ही राखल रोई, उसने मातम किया, क्योंकि लिखा हुआ है कि there is people that cried, और बहुत ही दुख उन्होंने मनाया क्योंकि बच्चों को मार दिया गया था, उनका कत्ल कर दिया गया। हेरोदिस ने ये कहा था कि जो भी मतलब बच्चे छोटे हैं, 5 साल की उम्र के कम हैं, उनको सबको खत्म कर दो। तो ये भी जो थी नबूवत हो चुकी थी, जिसे पूरा होते हुए हमने देखा। तो जब हम बेथलीहम के अंदर जाते हैं, बेशक हम बहुत कुछ पैलेस्टाइन के बारे में जानते हैं, लेकिन वहाँ क्रिश्चियन अरब्स
और जो मुस्लिम अरब्स हैं आपस में बड़े इत्तेफाक से रहते हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। अगर जो एक कह लें कि मजहब का इंसान दूसरे को नहीं तंग करता तो वो मतलब कोई किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर आप जानबूझकर कुछ ऐसी उल्टी सीधी बात करेंगे तो जाहिर है लड़ाई होगी, दंगा होगा, फसाद होगा। लेकिन बैतलहम मैं शुक्र करती हूँ कि उस जगह पे आज भी हम जा सकते हैं जहां हमारे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। बेशक वहां 99.9% क्रिश्चियंस थे, लेकिन आज वहां लेस देन 1.5% क्रिश्चियंस रह गए हैं। उसकी वजह ये कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मैं हेजिटेट नहीं करूंगी इस बात को यहाँ कहते हुए कि शुरू से ही बाइबल में देखें, जेनेसिस से लेके आखिर तक देखें तो ये जो फिलिस्तीन की और यहूदियों की दुश्मनी शुरू से रही है, हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। बाइबल में ये लिखा है कि शुरू से ही खून प्यासे हैं यहूदियों के, तो इसलिए इनकी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, लड़ाई रही है। तो आज भी जब हम देखते हैं, बेशक वहाँ हमारे अरब क्रिश्चियंस जो बहन भाई रहते हैं, जो ओरिजिनल क्रिश्चियंस कह लें कि शुरू से जो जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहे हैं, वो बैतलहम में रह रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि आप और मैं दुआ करते हैं और इन जगह को विजिट करते हैं ताकि ये जगह बनी रहे, ताकि हमें जो है अपने बच्चों को दिखाने के लिए कि यहाँ खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। अगर हम इजराइल नहीं जाते, अगर हम बैतलहम में माथा टेकने नहीं जाते, उस जगह को दर्शन नहीं करने जाते तो वो जो जगह है वो बंद हो जाएगी, कोई और उस पर कब्जा कर लेगा। सो इसलिए हर मसीह का फर्ज बनता है कि हम जरूर खुदा के घर जाएं, बैतलहम जाएं जहाँ खुदावंद पैदा हुए, और उस जगह पे गार्डन टूम पे जाएं यहाँ खुदावंद मुर्दों में से जी उठे। सो इसलिए क्रिसमस पे जो है अगर कोई देख रहा है या सुन रहा है, बच्चे अपने पेरेंट्स को ट्रीट करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता कि आप खुदा के घर जाएं और वहाँ खुदा के घर पूरी अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, तमाम बरकतों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। सो बैतलहम में जो थे खुदावंद पैदा हुए और बैतलहम से फिर वो बड़े हुए, यानी कि नासरत में रहे ज्यादातर, और उन्होंने जो खुद खिदमत की, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और जरूर बाइबल में नबूवतें हैं जीसस के बारे में, लेकिन आज इसी का जिक्र करेंगे जो माइका नबी ने कहा वो पूरा हुआ, और जो यसाया नबी ने ये रेवलेशन ली कि कुंवारी हामला होगी। एक नौजवान लड़की जो थी यहूदी आज भी अपनी फैमिलीज में जो पलौठी बेटी है उसको वो वर्जिन रखते हैं, यानी कि उसको कुंवारी रखते हैं। वो खुद अपनी मर्जी से कुंवारी, क्योंकि वो समझते हैं कि एक दिन जो थी ये जो नबूवत है उस लड़की में पूरी होगी। लेकिन खुदा का शुक्र है हम जानते हैं कि वो नबूवत ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, वो प्रोफेसी हो चुकी है। सो गॉड ब्लेस यू। जो माँ मरियम का भी जन्म था, सुपरनैचुरल जन्म था उनका, क्योंकि उनके जो माँ बाप थे वो बुढ़ापे में चले गए थे, काफी उनकी एज हो चुकी थी और उनके औलाद नहीं थी। तब जो था माँ मरियम की जो माँ ऐना, उसका जो मतलब माँ मरियम का जो बाप था, उन दिनों में जो बहुत खुदा को प्यार करते थे और खुदा से कुछ लेना चाहते थे तो वो रोजा रखते थे, व्रत रखते होते सी और अपने आप को अलग कर लेते थे। कहा जाता है कि जोसेफस फ्लेविस जो हिस्टोरियन है वो बताता है कि वो उन दिनों में जो माँ मरियम का बाप था वो बियाबान में चला गया, और इधर ऐना जो थी उसकी माँ थी, उसने भी रोजा और दुआ की। और खास तौर पे जो मर्द जो है, हेड है, सर है, वो जो करता है वो पूरी फैमिली पे असर होता है। तो जब उनके वो जो चले गए उसमें बियाबान में चले गए, विल्डरनेस में चले गए, उन्होंने लंबे अरसे तक रोजा रखा और खुदा से दुआ की कि उनके बुढ़ापे में उनकी दुआ सुनी जाए। तो इस तरह माँ मरियम का जन्म हुआ। हालेलुया। और जब माँ मरियम का जन्म हुआ तो उनके बाप की, उनकी माँ की बहुत उम्र हो चुकी थी, उनके काफी एज हो चुके थे। तो इसलिए वो कह सकते हैं कि अपनी ज्यादा जो जिम्मेदारी जो बेटी की थी वो यूसुफ के मतलब हाथ देना चाहते थे जितनी जल्दी हो सकता था। तो बेशक जब आप नासरत में जाते हैं देखते हैं कि वो गली है, वो जगह है जहाँ लॉर्ड जीसस रहते थे, और थोड़े ही दूरी लॉर्ड जीसस पैदा हुए, थोड़ी ही दूरी पे माँ मरियम और यहाँ यूसुफ रहते थे, और इसी जगह पे खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, बैतलहम में पैदा हुए। जब बड़े हुए तो जहाँ वो वुजू करते थे, जहाँ मतलब हाथ मुंह धोकर खुदा का कलाम पढ़ा जाता था, तो वो स्टेप्स पे बताते हैं कि जीसस इस स्टेप्स में से पता नहीं कितनी बार नीचे गए होंगे। और पानी जो था घर में उस वक्त, तो पानी की अभी भी इजराइल में कमी होती है, तो लेकिन एक ऐसा खुली सी जगह है जहाँ पानी कलेक्ट करते थे और स्टेप्स के जरिए नीचे जाते थे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट जीसस, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी पैदाइश जो है
अलग है सबसे, उनका काम करना का तरीका, उनकी फिलॉसफी दुनिया में पसंद की जाती है, उनकी बातों को पसंद किया जाता है। बेशक उनकी मौत का इनकार किया जाता है कि जिस तरह हम मानते हैं मसीह वो क्रूसीफाई नहीं हुए और उनकी जगह कोई और मर गया, लेकिन हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह जो है अल्फा और ओमेगा है, वो शुरू और आखिर है, वो ही सब कुछ है। That's all we know and we thank God कि खुदा हमारे दिलों में काम करता है। आए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदा उनका शुक्र करें। बाप तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं खुदा, हमारे पास वो अल्फाज नहीं कि जिससे हम तेरा धन्यवाद करें कि खुदा तूने अपने बेटे यीशु को भेजा, हालेलुया। और खुदा जो नबियों ने फरमाया था खुदा, जो आपने खुदा तेरे रूह के वसीला से खुदा प्रॉफिट्स ने कहा वो पूरा हुआ। खुदा तेरा शुक्र करते हैं खुदा, जब इस साल हम सेलिब्रेट करते हैं खुदा क्रिसमस को, खुदा तू हमारा खुदा हमारे दिलों को खुशी से भरना और खुदा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ फेवर देना, ताकि हम खुदा इस दिन को तेरे तुझ में होकर खुदा बनाए और तेरे सच्चे गवाह ठहरे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक, सारा जलाल तू ले, यीशु के नाम में आमीन। बख्श गुनाह सब मेरे, फजल ना रब। बख्श गुनाह सब मेरे, मांगू फजल देखो विच